So basically, today is the 5th of February 2022, and I would like to discuss the trading psychology as well as the next week what Nifty can do. So let's start with the Nifty analysis. And here I'm observing the Nifty from the very basic trend line point of view, but and I found this is a very important thing I just found over here. This is the swing high made at the 3rd of December. The later, the 13th of December swing high made, and later on the next swing high made at the 18th of the January 2022. Now, if I marked these two, 3rd of December high to 13th of December high, let's mark this one again. I say already marked, but let's mark this again from here to here, and just extend it on the right hand. Now you can see how much effectively the market validate this one. So if we want to analyze the same on the downward side by drawing this and this, you can see here the third time market hit this level and again came down. From there the market is now in the midpoint. तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है? The question is very important कि अब इस लेवल पर क्या हो सकता है. तो अगर आप देखें तो मार्केट अभी 0.5% ये जो जोन था इसके 0.5% जोन के नीचे है. ठीक है, मतलब कि मिड पॉइंट थ्योरी अकॉर्डिंग टू द WD Gann's मिड पॉइंट थ्योरी द मार्केट इज स्टेइंग बिलो द 0.5%. In case you want to reverse the Fibonacci to get the golden perspective of the market, the golden number of the Fibonacci, which is the golden ratio, it is at the 0.618 level, which is the 17,772. And you can see the market is continuously falling from this level after the budget. Also, if you remember the budget analysis, the 17,777 level, we talked about it. 17,777. So, if you remember, where it is. Yes, this one. The budget day, the WD Gann level. You can understand how much powerful is the WD Gann level is. The 17,577 we marked properly, and also we marked the target. So market continuously create the high and low at that particular point, and from there market is falling down. So my opinion, market have a little pressure on the bearish side, but again this market is now moving on the different type जो एक्चुअली में कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं बट इफ यू वी कैन इजीली टैकल दैट बाय यूजिंग द एनालिसिस and the mechanical trading definitely the mechanical trading can be happened according to the Gann, according to the Fibonacci, according to the Elliott wave. So everything can be happened with the mechanical trading. But whenever you found a bearish setup, I always prefer that I will continuous trade on the bearish setup with more trading volume. The more volume I using in any kind of bearish setup as of now. अगर आप मेरे लाइव ट्रेड्स भी देखेंगे तो वहाँ पर भी आप सेम तरीके का पैटर्न देख पाएंगे. जब मार्केट बुल्स पे जाते हैं मेरे जो क्वांटिटीज है वो बहुत कम हो जाते हैं. जब मार्केट बियर्स पे चल रहे हैं तो मेरी जो क्वांटिटी है वो मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ until and unless I got a strong signal on the bull side. ठीक है, तो ये तो हो गए अभी के. तो अभी क्या हो सकते हैं? द बेसिक रोड मैप कैन बी लाइक इफ द मार्केट कंटिन्यूअसली स्टे बिलो द 17,593 ऑन द क्लोजिंग बेसिस वी कैन इजीली सी द लेवल अप टू दिस. ये ट्रेड लाइन पर हम लेवल्स को आप काफी आसानी से देख सकते हैं. द नेक्स्ट थिंग कैन हैपन, द नेक्स्ट थिंग इज दिस इज द हाई वोलेटिलिटी चैनल. ठीक है,
ये हाई वॉलेटिलिटी चैनल तो हो सकता है कि इस लेवल पे कुछ मार्केट के कुछ अच्छे न्यूज आ जाए and markets start moving on this upward side by following this channel. Again came down, again go down. So this can be the proper channel trading method, probably on the market side. But again, the market continuously changing those channel. You also need to be remember that, because if you remember this, the channel formed at this particular point, and from this channel formed, market create the new channel. Now market is moving on the new channel. Was okay. But the most of the traders, by watching this bull rally, the 2020 21, the bull rally, ये सब देखकर मार्केट के जो बियर रैलीज थे पहले, वो बहुत सारे लोगों के दिमाग से ही निकल गए हैं. बट दोज द ट्रेडर्स, द इन्वेस्टर्स लाइक मी, there are many traders, those monies are stuck at the time, the cash money, not the future and option. They know it very well. आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को ये 2012 का ये रैली तो याद होगा. मुझे काफ़ी अच्छे तरीके से याद है. बट उस टाइम इतने इंटरनेट नहीं था, इतना एक्सेस नहीं थे इतने अच्छे से. ये रैली 20% का एक डाउन साइड था यहाँ पर, तो 10% 20% के रैली काफ़ी अच्छी तरीके से कवर हो जाते हैं. बट if you remember this rally of the 2008, if you remember this rally in the 2008, where the market corrected at 63% of its overall value, तो ये सारे के सारे the painful areas थे. Yes, we made a great money on the downward side, but at the same time, if you remember, there are many people whose cash money was stuck. मेरे भी थे कुछ ना कुछ, but fortunately मैं कॉल पुट पे ट्रेड करता था, तो ऑप्शन राइट पे भी थोड़े बहुत ट्रेड करता था मैं. तो वहाँ पर भी स्ट्रेटजीज के वजह से, और कह सकते हो कि जो स्टडीज हमने किए थे उसके वजह से we survived at the market. Also we made a great profit. बट वो ग्रेट प्रॉफिट तो बना, बट उसके साथ साथ बहुत सारे लेसन्स हमें मार्केट में दे गए. तो वहाँ से ही मेरे जो अभी के साइकोलॉजी के बारे में शुरू हो रहे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली साइकोलॉजी कभी काम में आता है जब आपको पता हो कि साइकोलॉजी क्या है. सेकेंडली, आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस हो, खुद से ऑनेस्टी हो, तो साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं इन टर्म्स ऑफ द पॉजिटिव वे. बट अगर आपको पता ही नहीं है क्या हो रहा है मार्केट में, आपने किसी और से सुनकर कुछ ले लिए, बट एट द ईयर ऑफ 2022 नाउ फरवरी, इट्स वेरी हार्ड कि आपको पता नहीं हो और आपको पूछना पड़ रहा है, क्योंकि देयर आर द मल्टीपल सोशल मीडिया इज देयर. बट उसके जो जितने अच्छाई है उतने नेगेटिव भी है, क्योंकि इफ आई एनी टाइम सॉ द ट्विटर, तो देयर आर 50% टाइम द पीपल्स आर बुल, 50% time peoples are beer. And the way they write the thing, there is no explanation, there is no logic, just they write down, and those are the followers, and even the people who following, it's in the million. Even in the very big newspapers, very big media houses, the same thing is happening. The question is, media house तब भी थे, media house अब भी है, but the question is the view, the perspective of view. There are very small amount of people who give the view with the logics. तो इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको एक्सपर्ट्स व्यू से कोई ओपन फायदा नहीं होता. डेफिनेटली हर एक व्यू से फायदा होता है, हर एक के पर्सपेक्टिव से फायदा होता है. बट इन बिटवीन देयर आर few things happening in the stock market जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग होते हैं. like every day I receive 2 to 3 messages with the stock names. तो वहाँ पर कभी कभार तो पिछले साल मैं भी देख लेता था ये कि कौन सा स्टॉक है जो अगले 3 दिन में 40% बढ़ने वाला है. एंड डेफिनेटली 10 स्टॉक जो उन्होंने भेजते थे उसमें से 1-2 इंक्रीज भी हो जाते थे कभी कभार. So the question of the psychology is how to improve, how to get improve from that. तो आपको जो चीज़ें सबसे ज़्यादा एक्नॉलेज करें कि आपको जो चीज़ें सबसे ज़्यादा आपको
फायदा देगा वो है जो आप देख सकते हो सामने। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेटा पे काम करो, येल डेटा पे काम करो, आप बहुत बॉन्ड डेटा पे काम करो, ज़रूरी नहीं है। ये जो आपके सामने कैंडलस्टिक चार्ट है, इसमें आप काम करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको फ़ायदा मिल जाएगा। लाइक 2018 के जो क्रैश था, वहाँ पर मैं उस वक़्त शायद ही ना समझ पाऊँ कि ये क्रैश के रीज़न क्या थे। बट भी अभी भी अगर मुझे नॉलेज ना हो कि यहाँ पर कौन से क्या हुआ था, अ कौन से इंटरनेशनल लेवल पे क्या हुआ था, इंडियन लेवल पे क्या हुआ था, वो मुझे जानने की ज़रूरत नहीं है थ्योरेटिकली। बट जो मैं चीज़ें सामने देख पा रहा हूँ, वो अगर मैं बिलीव करूँ तो यहाँ पर काफ़ी कुछ डेटास मुझे देखने को मिल सकते थे। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस बिकॉज़ वर्स्ट टाइम पे हमें सबसे ज़्यादा आसान लर्निंग्स मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द वेरी बेसिक थिंग इज़ द स्विंग पॉइंट, जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की। तो ये मैंने कभी क्यों डिस्कस की आपसे, एक सेकंड, ये मैं थोड़ा और जूम इन कर लेता हूँ इसको। हाँ, तो लेट्स ओपन दिस एंड ड्रॉ द सेम पैटर्न जो मैंने अभी ड्रॉ किए। दिस इज द सेम थिंग इज देयर एंड इफ यू सी दिस इज अनदर थिंग। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये अगर आप देखें तो मार्केट ने ये वाले लो को ये जो ट्रेंड लाइन के लो है इसको कंटिन्यूअसली मार्केट ने फॉलो की, और हायर वाले को भी ऑलमोस्ट 90% तक मार्केट ने फॉलो की, जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग सिचुएशन में अभी है। थर्ड वाले ने थोड़े बहुत ऊपर जाने की कोशिश की, लेटर ऑन इट्स फॉल। बट द क्वेश्चन इज, दिस इज द एंडिंग डायगोनल, बट today's 2022 is not an ending diagonal. Okay, this is not the ending diagonal, this is the broadening channel, but this one is the was the ending diagonal, so don't panic. But in case there are many global data, there are many Indian data, there are many other option data, and the stock data are saying that the market is not yet stabilized to move another bull run up to 25,000 निफ्टी। तो निफ्टी 25,000 जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो कब जाएगा, द टाइम कैन बी नॉट इन फेवर ऑफ आस। डेफिनेटली आज जो बिजनेसेस है कल उससे ज्यादा बिजनेसेस होगा, बट लिसन, सी द मेटा, द फेसबुक मेटा और द फेसबुक, the stock have been crashed one fourth of its stock value, which is roughly nearby, I think, Reliance value. तो बेसिकली उनके पास जो बिजनेस है वो हमारे देश के सबसे बड़े बिजनेसेस के इक्विवेलेंट में रहते हैं। तो बेसिकली हमें उस स्टॉक को कंपेयर नहीं करना चाहिए कभी भी हमारे इंडियन जीडीपी पे या फिर इंडियन जो इकोनॉमी है उस पे। द सेकंड थिंग, हम ज़रूर वो सारे स्टॉक जो हैं उन स्टॉक के जो एनालिसिस है, वो पैटर्न्स है, वो पैटर्न को स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि सुनने में ये आपको बहुत ही चाइल्डिश लगेगा, बट हमारे पास सिर्फ यही है। उन डेटास को हम एक्सेस नहीं कर सकते 100% तक। जो डेटा हमें दिखाए जाते हैं वो ही हम एक्सेस कर सकते हैं। इसलिए डेटा बेस्ड जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज होते हैं, विदाउट टेक्निकल, विदाउट स्टॉप लॉस, विदाउट टारगेट, वो मोस्टली फेल होते हैं, क्योंकि हमें उतना डेटा दिया ही नहीं जाता। Recently there is a CPR call trading strategy have been famous very much, but if you remember, even if you don't know, I'm talking about the order. When you punch the order, there is a thing. There is a thing like if you open this one. Okay, so there is a thing called the disclosed quantity. So when you punch the order in the disclosed quantity, that's so not, sorry, not CPR, but there is a thing called something. It's look like the volume. I do not remember the name, but that is you must understand what I am talking about. तो वहाँ पर वो डेटा नहीं जाता। तो इसीलिए डेटास के जो लिमिटेशंस होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, आप जो भी कर लो। बट उसी डेटा के साथ अगर आपने कभी भी मार्केट में टेक्निकल को पकड़ लिया, जैसे कि मैं ऑप्शंस के ट्रेड किस तरीके से करता हूं, अगर मैं छोटे से सिंपल से एग्जांपल दूं, ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट पे मैं काफ़ी ज़्यादा फोकस करता हूं। मैं जब ऑप्शंस होते हैं, मेनली
रिवर्सल के टाइम पे। तो ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, इसका मतलब ये डेफिनेटली नहीं होता कि वहां से रिवर्सल करेगा। इसका मतलब ये होते हैं वहां पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस है, जो हमें काफी आसानी से कुछ प्रॉफिट दे के जा सकता है। बट एट द सेम टाइम इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड कि उस ट्रेडिंग उस लेवल पे कौन से पैटर्न फॉर्म हो रहे हैं, तो मोर और लेस साइकोलॉजी इज समथिंग जहां पे आपको खुद पे भरोसा थोड़े बहुत होना चाहिए, आपके पास खुद कुछ प्लान होना चाहिए। अदरवाइज साइकोलॉजी विल बिकम अ मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द काइंड ऑफ group of people which will soon be very big industry as of now. Yes, there are little bit of psychology like साइकोलॉजी के ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग के बाद हुए साइकोलॉजी पे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं। अगर मैं उसको डिस्कस करने जाऊँ तो देयर विल बी वेरी बिग लॉन्ग टॉपिक। यानी कि मैं छोटे से वहाँ पर एनालिसिस करता हूँ। आपके पास मान लो कैपिटल है एंड सेम टाइम आपके पास स्ट्रैटेजी है, बट सेम टाइम पे आप मान लो ऑप्शंस पे या फिर फ्यूचर्स पे ट्रेड कर रहे हो, आप लॉस कर रहे हो। उस टाइम आपको कौन सा साइकोलॉजी गाइडेंस की जरूरत है? मान लो आपके पास एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है, अब वहां पर अगर आप फोकस नहीं कर पा रहे हो तो वहां पर एक साइकोलॉजी की जरूरत है, दैट्स कॉल्ड द राइट ब्रेन एंड द लेफ्ट ब्रेन स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली वहां पर हमें जो प्रैक्टिस करने होते हैं वो कंटिन्यूअस बेसिस पे एक कंटिन्यूअस ग्रोथ पे फोकस करना होता है। मैं यूजुअली इसको करने के लिए जो सलाह देता हूँ वो ये देता हूँ कि आप एक टाइम हॉराइजन क्रिएट कर लो कि 5 दिन, 10 दिन, 21 डेज और 20 डेज। तो आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी की जो स्ट्रीक है वो कंटिन्यूअस ग्रीन रहनी चाहिए। वो सेम स्ट्रैटेजी की यूज करो। कैपिटल आपकी स्मॉल रखो थोड़े, या फिर बिग भी रख सकते हो, दैट इज नो हार्म। तो वो जो है वो कंटिन्यूअस ग्रीन में कंटिन्यू होना चाहिए 21 डेज तक। अगर मान लो आपने कंटिन्यू करते हुए 15 दिन हो गए, you are thinking I am becoming the great trader, but no, wait. At the day of 16th day you make the loss, whatever the loss, either your winning streak is like this, sorry for the interrupt, कि आप एक टाइम हॉराइजन यहाँ पर क्रिएट कर लो हमेशा कि आपको 5 दिन के टाइम हॉराइजन पे काम करना है, 10 दिन पे करना है और 21 दिन पे करना है। मेनली जो सबसे फायदेमंद साबित हुआ है मेरे स्टूडेंट्स में से वो है कि 21 डेज। तो वो कैसे होते हैं, लॉजिक मैं कंसेप्ट में यहाँ पर समझा देता हूँ थियोरिटिकली। बाकी इन द कोर्स देयर इज अ वेरी डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ टू डू इट ऑन द टेक्निकल बेसिस ऑल्सो। तो द क्वेश्चन इज 21 डेज कौन सी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है, सेकंड किस मेथड पे करना है, कितना मनी मैनेजमेंट, डेफिनेटली देयर इज अ मनी मैनेजमेंट रूल आल्सो। तो मान लो आपने कोई स्ट्रैटेजी मास्टरी की है, फर्स्ट डे यू शुड बी इन द प्रॉफिट, सेकंड डे यू शुड बी इन द प्रॉफिट, इन दैट वे मान लो आपने 15 दिन प्रॉफिट किए हैं। ऑन द 16th day your confidence will boost, highly your confidence will boost and you made the loss। ये होते हैं, ये होगा। Then in the 17th day, in the 16th day after you make loss, you think that 15 दिन तो प्रॉफिट किए, एक दिन तो लॉस में जा ही सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं स्टॉक मार्केट में 100% प्रॉफिटेबल कोई नहीं रहता। तो वो भी सही है। नाउ लेट्स काउंट योर 17th डे एज डे 1। उस 1 डे से आपको फिर से 21 दिन काउंट करना है। तो ये एक कंटिन्यूअस बेसिस पे एक लर्निंग प्रोसेस होते हैं जो आपको फायदा जरूर मार्केट में देगा। आप सोच सकते हो इतना दिन लगेगा, मैं क्यों ना, ये लेंथी प्रोसेस है, इस पर मैं नहीं जाता, मैं कुछ शॉर्ट ढूंढ लेता हूं इंटरनेट पे, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा कि 3 दिन में मास्टरी, डेफिनेटली मिल जाएगा। बट द क्वेश्चन इज
फॉर द लॉन्ग टर्म, मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं, दे ट्रेड, दे विन, अगेन दे लूज। एंड अगर आप मानो तो लेस देन 50% ऑफ द ट्रेडर्स दे ट्रेड इन वेरी हरी, कि उन्हें कुछ करना है। एक्चुअली में व्हाट इज द, तो क्या करना है? आप अगर कैपिटल लॉस कर दोगे तो क्या ही करोगे? देन अगर मैं मान लो ये बात बोल रहा हूं आपको कि आपको इस तरीके से करना है, आप सोचेंगे इस सर के लेंथ कोर्स बहुत लेंदी है, हम मेरे पास इतने टाइम नहीं है। वी सॉ मेनी मेनी एडवर्टाइजमेंट in the YouTube, we saw many advertisement on Facebook, even now in the on the YouTube is flooded with the big banner advertisements कि stock market is nothing, it's very easy. But you might missed the thing कि ये इजी लगता है, इजी है भी, बट जो प्रोसेस इसके लिए लगता है वो इजी नहीं है। मान लो मैंने आपको बोल दिए हैं, आप ये 16th डे पे भी आप लॉस नहीं करेंगे, आप 21 डेज तक प्रॉफिट में जाएंगे। बट कब? जब आपके पास एक सेट ऑफ रूल होगा। और मैं तो कहता हूं कि जो लोग ये कंटिन्यूअस बेसिस पे 21 दिन का जो लॉस है 20th डे पे जाकर लॉस करते हैं, वो ज्यादा सीखते हैं। किस लिए? क्योंकि वहां पर उसके जो पेशेंस है ना वो टेस्ट होते हैं। अब पेशेंस जो है वहां पर जब टेस्ट होगा, वो फिर से 21 दिन का उसको चैलेंज लेना होगा खुद से। मैं जाकर कुछ नहीं करूंगा, डिमैट अकाउंट के जो मालिक है वो आपको कुछ नहीं कहेगा, स्टॉक मार्केट के जो सेबी के जो हेड है वो आपको कुछ नहीं कहेगा, आपको जो करना है खुद से करना है। तो अगेन मैं ये कहता हूं कि अगर आपको लगता है द कोर्स इज लेंथी, अगर आपको लगता है 21 दिन इज वेरी बिग ट्रेडिंग डे, देन यू आर इन द रॉन्ग प्लेस। आप वो 21 दिन आपका 2.5 साल में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर आपने गलत रास्ते पकड़ लिया, आपने अगर शॉर्टकट पकड़ लिया। तो बहुत सारे टाइम मेरे पास एक क्वेश्चन आते हैं, हाउ मेनी डेज आई नीड टू बी प्रॉफिटेबल? माई आंसर इज ऑलवेज पहले कुछ दिन में आप प्रॉफिट बना लोगे, बट जैसे कि कल के दिन था निफ्टी के लिए, उस तरीके के डे में आप लूज कर दोगे। कैसे लूज करेंगे? क्योंकि आप मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे। जैसे कि अगर मैंने कह दिया है कि ये मनी मैनेजमेंट आपके लिए है, आप फॉलो नहीं करेंगे, ये मुझे 100% पता है। कब करोगे? जब आपको रात को जाकर चार्ट पे अगर आप देख रहे हो, दिख रहा है कि अगर मैंने सर के मनी मैनेजमेंट को फॉलो किए होते तो लो प्रॉफिट होता, तो देखेंगे नेक्स्ट डे आप सेम तरीके से ट्रेड करेंगे जो आप कल कर रहे थे। फिर आप रात को जाकर देखेंगे सर के मनी मैनेजमेंट पे तो प्रॉफिट हो रहा था। ऑफ कोर्स देयर इज मनी मैनेजमेंट के अलावा भी स्ट्रैटेजीज हैं, उसी को आप 3 दिन 4 दिन लगातार करेंगे, सेम तरीके से देखेंगे आप प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप खुद का रूल यूज कर रहे हो, जो कि एक्चुअली में कोई रूल है ही भी नहीं, आप खुद के इंट्यूशन को यूज कर रहे हो। देन स्लोली योर कैपिटल बिकम लेस, क्योंकि मानो आपके पास ₹1,00,000 है, वो ₹1,00,000 जब 25,000 पे जाएंगे तो डेफिनेटली आप सोचेंगे कि एक दिन तो करके देखो वो मनी मैनेजमेंट फॉलो, क्योंकि यू आर इन द डिप्रेस्ड सिचुएशन साइकोलॉजिकली। उस दिन आप जाकर प्रॉफिट करेंगे। देन धीरे धीरे, एंड ये वाला जो पार्ट है ना, ये डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स के डिफरेंट टाइप ऑफ रूल है। कुछ लोगों के पास और भी कैपिटल है, वो कैपिटल लाएंगे एंड दैट दे बिकम द इगोइस्टिक। तो ये वाला साइकोलॉजिकल पार्ट बहुत डिफरेंट है, ये इगोइस्टिक पार्ट पे चले जाते हैं। एंड इगोइस्टिक पार्ट पे जब चले जाएंगे देन द टाइम विल बी मोर लेंथियर। द क्वेश्चन इज, अगर आपके बैंक में वो बैलेंस ही नहीं है कि आप निकाल पाओ, डिमैट में ट्रांसफर कर पाओ, देन डेफिनेटली वो 25,000 में ही आपको काम करना होगा। Then in the upcoming 25 days, when your 25,000 become nearby 1 lakh or the more, ठीक है, तो स्लोली आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। अब जाकर क्या होगा? अब जाकर द साइकोलॉजी पार्ट नेक्स्ट। मैंने शायद थोड़ा ज्यादा कह दिया, 25,000 का 1,25,000, बट लेट इट
बी लेस रियलिस्टिक, वो रियलिस्टिक है बट लेट इट बी लेस रियलिस्टिक। डेली के सर 10 अब मान लो डेली के 700 से 500 रुपए, तो 500 रुपए इंटू 2, 10,000 और 25,000 का मान लो बहुत ही कम रिस्क लेकर भी आप 500 रुपए का प्रॉफिट कर पा रहे हो आफ्टर द ब्रोकरेज एंड टैक्सेस, 35,000, then slowly it will become multiple and somehow your salary is credited, you got some fund from your near and dear ones, or say maybe you take some money for your loves one, or sold some holdings of earlier or somehow manage। वो 21 days का जो लर्निंग्स है वो आपको साइकोलॉजिकली हेल्प करेगा। मैं नेक्स्ट जो बातें हैं, जो फंड अरेंजमेंट की जो बात कर रहा हूँ, ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपके जो एंथुजियाज्म है उसको इंक्रीज करने में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि अगर आपने वही 500 रुपए में अटक रहे तो डेफिनेटली वो एंथुजियाज्म, साइकोलॉजी में एंथुजियाज्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्योंकि एंथुजियाज्म अगर नहीं मिलता है तो कोई भी डिप्रेस्ड इंसान को आप बहुत अच्छे भी फील करा लो, अगेन वो डिप्रेशन में चला जाएगा। तो देयर इज अ थिंग कि एक आदमी डिप्रेशन में है, आप उसको घुमाने ले जाए थोड़े बहुत, आप उसको थोड़े बाहर की दुनिया दिखाए, कुछ हिल स्टेशन पे ले जाए, आप कुछ बहुत अच्छी अच्छी जगह पे ले जाए, बट अगेन इफ द पर्सन is not came out from that dark zone, they will again gone into the dark zone and this time that will be more deeper। तो वो 500 रुपए का जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मेंटेन करने से ज्यादा उसको इंक्रीज करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अदरवाइज in this reality what that 500 rupees will be again nightmare of you। क्योंकि आप सोचेंगे कि मेरे कैपेसिटी तो पहले 1 लाख में तो बहुत ज्यादा था, अभी 500 रुपए है, तो डेफिनेटली यू शुड इंक्रीज दैट टाइम फ्रॉम द 500 to let's assume 750 for the next 7 days। Again for the next week you can easily indirectly increase it to the 850। now again increase it to the, because वो ग्रोथ जरूरी है। आपने किसी को डिप्रेशन से निकाले, डिप्रेशन के निकालने के बाद आप उसको अगर वहां पर छोड़ देंगे, then again they will go into the deeper depression। no, so let them create a path कि वो छोटे छोटे स्टेप करके वो वहां से निकल पाए। क्योंकि मछली एक दिन दे देने से कोई आदमी का एक दिन का पेट भरेगा। देन इफ यू जस्ट let him teach that how to every day catch fish, they will never sleep in hunger। that is a term I think called। तो ये वही साइकोलॉजिकल स्टेप्स हैं। अब बात कर लेते हैं, ये डिफरेंट पीपल के डिफरेंट होते हैं। if your parents have a bigger capital, like a bigger wealth, you will everything look like मैं साइकोलॉजिकली मैंने जो कहा, अगर आपके पास ईगो है तो ये सब बेकार लगेगा। अगेन इफ योर पेरेंट्स हैव अ बिगर वेल्थ बट दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, तो कहीं ना कहीं जाकर ये चीजें जो मैं अभी कह रहा हूँ ये बहुत मीनिंगफुल लगेगा। अगेन इफ यू डोंट हैव दिस बोथ but but you have your bigger ego on inside, then you will think ये तो थियोरेटिकल बातें हैं, इनमें से क्या ही सुनना, मैं अपने तरीके से करूंगा लाइक इन द बॉलीवुड वे। तो देन दैट विल बी डिजास्टर। क्योंकि आप ना तो आगे बढ़ पाएंगे, ना स्टॉक मार्केट को छोड़ पाएंगे, ना कुछ जॉब कर पाएंगे, ना कुछ बिजनेस कर पाएंगे। द लेटर वन देयर इज अ वेरी थिंग जो कि मोस्ट ऑफ द पीपल के अंदर है, उसको फॉलो करना बहुत आसान है कि वो ऑलरेडी कुछ लॉसेस से रिकवर कर चुके हैं। लॉसेस से रिकवर करने के बाद वो फिर से अपने कैपिटल को रीगेन कर चुके हैं। दैट टाइम द पीपल विल अंडरस्टैंड दिस वर्थ, द वर्थ ऑफ द साइकोलॉजी। क्योंकि अभी वो जो कैपिटल उन्होंने रिगेन किए हैं, उस रिगेन्ड कैपिटल में से अगर उन्होंने लॉस करना स्टार्ट कर दी
तो उनको एक पाथ चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि वो लॉस्ट कैपिटल को रीगेन करने में कितने टाइम लगे हैं। तो उनको बहुत अच्छी तरीके से ये सब बातें समझ में आएगा। But it is my advice to everyone, we are nothing in front of the Mother Earth. We are nothing in front of the universe. So ego is not a thing to fit in our places. तो ईगो को मत रखिए। स्टॉक मार्केट हो, बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, आप ईगो को बिना साइड पे रख देंगे। वो बॉलीवुड वाली एटीट्यूड मत रखिए। वो वो सनी देओल की वो मूवी थी ना, जो कोर्ट में था, उस तरीके का ईगो मत रखिए। वो रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। Yes, up to some time, those kind of thing happen, but again, वो बॉलीवुड एटीट्यूड मत रखिए कभी भी। Most of the time, the people nowadays are directly, indirectly attracted by those attitude, attract not just Bollywood, Hollywood, and any many films attitude मत रखिए। Be realistic, and dream big। किस तरीके से ड्रीम बिग? Read books, the actual successful people's books। वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें लिखे होते हैं, बट यू विल एक्चुअली seeing them successful, right? Not just they are successful by acting successful. That is a different thing. So be realistic, be on the ground, एंड जो 21 डेज का जो भी मैंने आपको समझाया, ये करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली डेफिनेटली मेरे बहुत स्टूडेंट्स ने इसमें बहुत सारे फ़ायदे लिए हैं। वो बहुत सारे फ़ायदे करते हैं इसमें से। फ़ायदे इन द सेंस दे गॉट बेनिफिट आउट ऑफ इट, नॉट जस्ट फ्रॉम द मनी, बट दे ऑल्सो केम आउट फ्रॉम द डिप्रेशंस ऑफ लूजिंग, एंड नाउ दे आर हैप्पीली ट्रेडिंग। बहुत सारे लोगों ने किए हैं, बहुत सारे लोग आगे भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कर लिया उसके बाद आपके अंदर एक ऑटोमेटिकली मैकेनिज्म बन जाएगा, नहीं। वो स्ट्रिक को फॉलो करने की कोशिश कीजिए हमेशा, और वो स्ट्रिक को फॉलो करते रहिए। वो स्ट्रिक पे ही आपको प्रॉफिट मिलते रहेंगे। एंड जब भी एक बार स्ट्रिक लूज हो जाए, आप फिर से उस स्ट्रिक को अगेन विन की तरफ ले जाइए 21 डेज का, एंड श्योरली यू विल गेट अ बिग 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 इम्प्रूवमेंट इन योर trading style. Okay, so thanks for the watching this one, and I will get back to you.